मतलब दिल्ली बहुत दूर है भाई साहब। मेरे हिसाब से कि सब हंस रहे हो यार। अगर मुझे लगता है कि आई ऑलवेज फील कि मेरी जो फिल्म अब आ रही है वो मेरी बेस्ट फिल्म है, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है। और मेरे डैड ने बहुत एक खूबसूरत चीज़ मुझसे कही कि एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज लर्निंग, यू ऑलवेज अ स्टूडेंट, तो you always feel you can do better. This has been one of my best experiences for sure because of the people involved. पर मुझे लगता है कि शुरुआत तो अभी हुई है। सोनम, या हाँ जी, हाँ या हाँ, हाय हाय हाय। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ मिल चुके हैं बाकी के मूवीज़ के लिए, बट व्हाट मेक्स निर्जा डिफरेंट? जैसे राम ने कहा, एक वैल्यू सिस्टम है, एक ह्यूमन कनेक्ट है, एक साधारण लड़की की कहानी है। तो जब लोग एक ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी लाइफ को देखते हैं जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, आई थिंक पीपल कनेक्ट कि यार ये कोई भी हो सकता था। एंड लाइक ही सेड देयर वर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट इन्वॉल्वड इन द फिल्म, और ऑल्सो एक ऑनेस्टी भी थी इन टर्म्स ऑफ what we were trying to project with the film, what everybody was trying to project. और पता नहीं क्या, आई डोंट नो, आई थिंक there's a certain Neerja's story was very very beautifully compelling. I think एक लाइन है ना जो शबाना आंटी कहती थी, और शबाना आंटी ने कहा है कि उसकी कुंडली में लिखा था कि कुल का दीपक बनेगी वो, and that was something that Rama aunty used to keep saying. And I truly believe that the story is so relevant today. We are constantly facing some of the issues that are showcased in the film are so relevant that everybody is actually connecting to her, to Neerja, not to me. It's connecting to her story, to her values, and the way that Ram and Saivan and Samyukta have put across the story, and the way that it's been, you know, supported by everybody. तो मैं तो अपना काम ही कर रही थी, honestly, all this time. So it's not I can't take ownership for something that is completely not mine to take. Hi Sonam. Hi. Firstly, congratulations to the team. Thank you. So my question is to you. You have been receiving a lot of appreciation for the movie. What touched you the most about the movie? Like, you know, if somebody you were just touched by somebody's appreciation. Where's Anish? And Akhil, I think first Anish called me early in the morning. Ram and I were in a radio interview, or he called me. He said, "मैं अकेला गया हूँ, and all my family is going to be very upset with me, but I've gone alone to watch the film." Huh? They were upset with you, and by himself. First thing in the morning, first show, 9 बजे का show भी, तो 10:30 बजे मुझे phone call आता है. मतलब we were like going mad, and then Akhil called us, and then I spoke to the whole family then, and for me, I was like, okay, this is the best compliment, and I was like, अभी मैं 2 दिन के लिए कोई reviews नहीं पढ़ूंगी, because the night before I read 1 or 2 reviews which had come from UAE, and then I was just like, why am I even getting into it? तो मैंने अपने सोशल मीडिया टीम को बोला था, जस्ट रीट्वीट व्हाटएवर यू हैव टू रीट्वीट, एंड देन आई केप्ट गेटिंग कॉल्स कि हैव यू रेड दिस, हैव यू रेड दैट. ऐसे मुझे नहीं पढ़ना, अगर कुछ खराब बोल देगा तो आई विल बी वेरी अपसेट. आई एम वेरी हैप्पी विद दीज 2 रिव्यूज. देन ऑन संडे आई वाज लाइक, अरे यार, आई शुड हैव रेड दिस आल्सो, आई शुड हैव रेड दैट आल्सो. एंड so I think those were the best compliments, and also I think from them, because it's obviously I'm playing their sister. And it was, for me, that was the best. And also from my dad, whatever he said to me privately, I think. And, and eventually, I've been saying this a lot, I'm a director's actor. So if Ram Advani said, okay, I'm okay. That is the truth, yeah? When have I ever asked you for one more take? Even if you said okay, I was like, Ram, can you get... So many times I said, can I have one more? He said no. You know how many times that's happened? But I think it's better if Anish or Akhil actually speak about what they thought of the film. आप बोलेंगे? You know, Anish went and saw the movie alone, but I went with my wife and my children, you know. And we saw Sonam only in the titles.
Once the movie started, Sonam had disappeared. It was Neerja all the way through, you know. That's what we felt. हेलो शबाना जी। शबाना जी हाय। जब ऑब्वियसली फिल्म बहुत ज़्यादा मूविंग है, बहुत इमोशनल है, कहीं ना कहीं सब कुछ छुआ है फिल्म ने, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब फिल्म में देख रही थी और जब आप स्क्रीन पे आ रहे थे तो आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब आपने खुद ये फिल्म देखी बाद में, क्या आपको भी ऐसे कुछ इमोशन से गुजरना पड़ा? आप अपने आप को देख के रोए या किस तरह का इमोशन था आपके साथ? हाँ, सही बात यह है कि मैं भी रोई थी। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो रिएक्शन हुआ है, फिल्म का तो हुआ है, सोनम का भी हुआ है, तमाम लोगों का हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो रिएक्शन हुआ मुझे मालूम नहीं कि उससे मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर इंसान मेरे पास आके कहते हैं आपने रुला दिया। अरे तो उसमें मैं खुश क्यों होंगी अगर मैंने रुला दिया? तो सब लोग आके ये कहते हैं, लेकिन सही में मेरे लिए भी जैसे कि सोनम कह रही हैं, सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट यही था कि भाइयों को पिक्चर अच्छी लगी और उन्होंने फ़ोन करके हमसे कहा। और इरफान साहब जिनके ज़रिए मैं पहली बार गई थी चंडीगढ़ और रमा जी से मिली थी जब फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं था, मुझे भनोट फैमिली ने बुलाया था नीरजा भनोट अवार्ड फॉर ब्रेवरी देने के लिए। तो इरफान साहब एक हैं जो हमको लेकर गए थे, और जो मुझे पहला फ़ोन आया था वो उनका आया था, और वो इतना रो रहे थे कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे। दैट फॉर मी वाज वेरी वेरी डीपली मूविंग। और जैसा कि आपसे अतुल ने कहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि अब तक मैं झक मार रही थी क्या? जितने मुझे फ़ोन आते हैं, जितने एसएमएसेस आते हैं, जितने ईमेल्स आते हैं, जितने लोग आते हैं, मैं सोचती हूँ कि भैया इससे पहले भी मैं थी, आप लोगों ने देखा था कि नहीं? बट ऑब्वियसली इट्स रियली ड्यू to Ram's vision, and it couldn't have happened without the writers Saivan and Sayukta. So we want you to stand up and take a bow, because it really truly is the power of the writing. And I want to thank Fox. मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो मैं फॉक्स के हर इंसान के कान पकड़ के कहती थी मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है पिक्चर, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। और आप सोचिए कि 40 साल में मैंने कभी अपने आप को मार्केटिंग से कभी ना इन्वॉल्व किया है, ना उसकी फिक्र की है, और यहाँ मैं कह रही थी नहीं मगर मुझे नज़र नहीं आ रही। और विजय जी मुझे कह रहे थे, शेखा मुझसे कह रही थी डोंट वरी, इट विल बी ओके, इट विल बी, एंड दे प्रूव्ड मी रॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्लैड। शबाना जी, मेरा सवाल भी आपसे। I'm just going to give the mic to Anish for 2 minutes because he can tell us a little about his reaction. Yeah. No, my reaction, of course, was, and everybody's reaction will be the same. But I want to make a slightly different statement out here. To my mind, and both Akhil and my mind, this movie can be a game changer for India. And there's no major rocket science required to do that. You know, this movie is the type of messages we're getting from youth, from the older generation, of how this movie has inspired them. And if every state decides that they have an education department and they make sure that every school-going kid and a college kid goes and sees this movie and imbibes those 4 principles which are in that. One is, there's nothing to be scared of. You can conquer your fear and be of service to yourself, your fellow man, your community, your state, your country. Do your duty come what may. Never tolerate any injustice and never compromise on your self-respect. And if the youth imbibes even a little bit of these messages, it'll make a tremendous difference for India. And you know, yesterday we were in Ahmedabad, and there's this guy who came up to me, and he said he runs a company, he's the managing director of a company which has 1,200 employees. And he says, I'm going to make sure that all of them go and see this movie, because it's going to help my company, it's going to help increase our profits, because they'll do your duty come what may. That's the type of possibility which is there. शबाना जी, मेरा सवाल आपसे है। आप बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, ये सब जानते हैं, आपने रुलाया ये भी हम सब मानते हैं, लेकिन मैं खुद उनसे मिली हूँ, रमा जी से मिली हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि एक सिंपल हाउसवाइफ, एक स्वीट सी सिंपल हाउसवाइफ, इवन जैसे उसमें एक था मतबल, इसका मतबल नहीं जानती,
उसे आपने किस तरीके से, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रमा जी सामने नहीं खड़ी है, तो उसको आपने इससे ज़्यादा बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट आप मुझे नहीं दे सकते। वाकई इसके बाद इसको जवाब देना भी मेरे लिए छोटी बात होगी। लेकिन मैं जब रमा जी से मिली थी, जो जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी वो थी उनकी जिंदा दिली, और वो थी उनका, ऐसा लगता था कि एक समंदर है वो मोहब्बत की। तो इस बात का मुझे बहुत एहसास था कि ये जो जितनी मोहब्बत उनकी बातों में टपकती थी, फिर राइटर्स ने उसको लिखा भी इस तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं सोनम को बचपन से जानती हूँ, इसको अपने सामने मैंने पैदा होते देखा, बड़ा होते देखा, तो इसके लिए और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे आसानी हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सब लोग बैठ के बस एक दूसरे की तारीफ़ ही करते रहेंगे, लेकिन सही मानों में राम, जब डायरेक्टर आपको बताता है कि वो क्या फिल्म बना रहा है, तो उससे एक्टर को जो अपना सेंटर है वो सेंटर उससे मिला। और राम बार बार ये कहते थे कि देखिए फोरग्राउंड में ये हाईजैक है, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, एंड आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस, इसीलिए लोगों को इतनी पसंद आ रही है वो चीज़। थैंक यू।